Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, and very warm welcome to all of you to the first session of in language and spoken English and advanced communication skills. I'm your mentor, Myra Qureshi. In today's class, we are going to be understanding few things. First and foremost, that what is English language and why is it important for us to learn this language. Secondly, we are going to discuss the course outline. And thirdly, there are two very important, essential, and fun topics which we are going to explore together and practice together. So without further delay, let's get on with it. So my dear students, as you can see on my screen as well, we have prepared a course outline for you. It means that we are going to learn कि इस पूरे कोर्स में हमने किन किन टॉपिक्स को डिस्कवर करना है या किन किन टॉपिक्स को हमने प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना है. ठीक है. Now as you can see that we have couple of different topics. For example, we have grammar, communication, pronunciation, public speaking, presentation, ebooks, reviews, and summaries. It means that we are going to start with the structural part of the English. यानी हम सबसे पहले जो हमारी English language में structure की खामियां हैं या confusions हैं, हम उनको पहले दूर करेंगे. एंड साथ ही साथ हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज़ को भी डिस्कवर करेंगे सो दैट बोलना किस तरह से है, कैसे है और क्या बोलना है, इन तमाम जो नीड्स हैं इनके ऊपर आप साथ के साथ काम कर सकें. ठीक है. अच्छा, नाउ इस कोर्स में डिफरेंट क्या है? ये पूरा कोर्स आप सबके लिए जो डिज़ाइन किया गया है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर कोर्सेज. हाउ? Because this course is practical. It means that all the activities which are designed in this course are for the ESL learners. वो लोग जो English as a second language learner सीखते हैं, उस approach को सामने रखते हुए कोर्स को डिज़ाइन किया हुआ है, activities को डिज़ाइन किया हुआ है. This course is not teacher centered, it is student centered. It means that all the activities are designed here where students can participate and practice their spoken English. So mentor का spoken time यहाँ कम है और हमारे स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो प्रैक्टिस करने के लिए कोर्सेज ज्वाइन करते हैं स्पोकन इंग्लिश के, उनके लिए टाइम ज़्यादा है, एक्टिविटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं. ठीक है. सो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर कोर्सेज. आई बेट दे वुड बी ऑफरिंग आउट देयर. एंड थिर्डली, हम ज़रूरी क्यों है हमारे लिए कि हम स्पोकन इंग्लिश की जो ये स्किल है इसको सीखें, या मैं इसको स्किल क्यों कह रही हूँ, इससे हम अर्निंग तो नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है. As you can see, globally, we have a lot of opportunities now rising up, which are like they want people from the market who can speak this language properly. तो वो लोग जो communicate कर सकते हैं और clearly communicate कर सकते हैं और English को confidently use कर सकते हैं, उनके लिए market में बहुत सारी opportunities नज़र आ रही हैं या बन रही हैं. सो फॉर दैट रीज़न इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के अलावा भी स्किल को सीखें ताकि आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकें. आपके सामने मैंने सिर्फ एक वेबसाइट अभी यहाँ ओपन की है विच इज़ प्री प्ले. दिस इज़ द वेबसाइट फॉर द पीपल जो कि इंग्लिश को सीख कर सिखाने में इंटरेस्टेड हैं. सो ऑल दोज पीपल जिनको ट्यूटरिंग जॉब्स में इंटरेस्ट है या वो ट्यूटर करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं इंग्लिश को घर बैठे हुए स्टूडेंट्स को फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंडली, टीचर ऑन के नाम से एक और वेबसाइट है. वी विल एक्सप्लोर दैट वेबसाइट एज वेल. एंड देर आर सो मैनी कपल ऑफ अदर वेबसाइट्स टू जहाँ पर आपके लिए जॉब्स, ट्यूटरिंग जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको लिस्ट करते हुए नज़र आएंगी. सेकेंडली, मैंने एक वेबसाइट ओपन की है यहाँ पे इंडीड की. All those people who are not interested in teaching but they want to learn this skill and use it properly. As you can see guys, यहाँ पे we have chat support representative की job, we have communication specialist job, we have jobs that only requires people जो कि English बोल सकते हैं. ठीक है. Call center से related job हैं. Again, social media and chat support agent, sales representative, CSR की jobs हैं. So now as you can see, there is a shift in the job market जहाँ पे आप skills को use करके भी jobs ले सकते हैं और communication को use करते हुए भी as a skill आप earning opportunities को grab कर सकते हैं. ठीक है. So this is what I wanted to tell you before starting the lecture. Now let's focus back on the course outline. Your course outline includes grammar,
topics, it means that in the first module we are going to be focused on the grammar. ठीक है, so module number 1 में या हमारे module का जो first basic part है उसमें हमने basic English grammar से start करना है. So those students who have joined me because they can understand English, यानी उनको जब वो सुनते हैं English तो उसको उनको understand कर सकते हैं, but they are unable to reply or respond back. ऐसा क्यों होता है? 2 वजूहात की वजह से होता है. एक इस वजह से क्योंकि हम जवाब स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे होते, एंड सेकेंडली हम अगर स्ट्रक्चर भी कर लेते हैं दिमाग में हमारे आंसर भी आ जाता है तो हम उसको बोल नहीं सकते बिकॉज ऑफ हेजिटेशन. एंड द हेजिटेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दैट हेजिटेशन हैपन्स बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन द फैक्ट कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं. यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन द फैक्ट कि अगर आप बोलेंगे तो सही बोलेंगे, एंड यू आर बेसिकली अंडर कॉन्फिडेंट. एंड वाई आर यू अंडर कॉन्फिडेंट? क्योंकि आपको उस चीज़ का नॉलेज प्रॉपर नहीं है, या आप उस नॉलेज जो जितना भी नॉलेज आपके पास है उसके ऊपर आप कॉन्फिडेंट नहीं है. तो वी आर गोइंग टू रिवाइज, क्योंकि आप सब लोग ये टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे समहाउ इन योर इंस्टीट्यूट्स, इन योर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़. वी आर गोइंग टू रिवाइज एंड वी आर गोइंग टू रीलर्न द कॉन्सेप्ट्स, बट एक डिफरेंट अप्रोच के साथ. इस बार जो हम अप्रोच यूज़ कर रहे हैं वो स्पोकन से रिलेटेड है. पहले जो आपने अप्रोचेस से ग्रामर पढ़ी है वो रिटन एस्पेक्ट से पढ़ी है. तो अब हम ग्रामर के वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो स्पोकन इंग्लिश को सॉलिड करने के लिए या स्पोकन इंग्लिश को मॉडिफाई करने के लिए, बेहतर करने के लिए बनाए गए हैं. सो 50% ऑफ द टॉपिक्स हमारी जो लैंग्वेज के हैं हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ने वाले हैं जो हमारी स्पोकन को बेहतर कर सकते हैं, ना कि हमारे रिटन एक्सप्रेशन को. देन वी हैव कम्युनिकेशन बेस्ड टॉपिक्स. कम्युनिकेशन के टॉपिक्स आपको किस तरह पढ़ाए जाएंगे या सिखाए जाएंगे? There is this book which I have opened here. As you can see कि ये advanced skills for communication students के लिए book बनाई गई है. Those people who have some problems with communication, इस book में तमाम वो topics मौजूद हैं जो उनको different areas of life में बोलने के लिए, communicate करने के लिए use करने होते हैं. ठीक है, we have activities and worksheets as well, as you can see. So कम्युनिकेशन बेस्ड मॉड्यूल में हम इसी तरह के बुक्स, रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हम कम्युनिकेट कर सकें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिनेरियोज़ में. कम्युनिकेशन को सीखने का बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप अपना कुछ स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू अंडरस्टैंड करें कम्युनिकेशन के मॉडल्स को. आप अंडरस्टैंड करें कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कैसे किया जाता है. उसके बाद द एक्टिविटीज़ विच आर गिवन इन द बुक्स और अदर रिसोर्सेज वो आपको हेल्प करती हैं आपकी उस जो सीखी हुई स्ट्रैटेजी है या उस प्रैक्टिस की हुई स्ट्रैटेजी उसको मज़ीद बेहतर करने में. ठीक है, सो वी विल लर्न थियरी फर्स्ट एंड देन वी विल प्रैक्टिस इट वर्बली, ताकि हमारी जो हेजिटेशन है, जो कन्फ्यूजन है, जो डर है वो हमारा ख़त्म हो जाए. देन वी वुड बी वर्किंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन. आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करती है. एक्सेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, बट इट डज नॉट मीन दैट यू विल बी टॉट एन एक्सेंट ऑफ अ नेटिव पर्सन. आपको वो एक्सेंट नहीं पढ़ाया जाएगा जो आपको एक ब्रिटिशर की तरह साउंड करने में या एक अमेरिकन की तरह साउंड करने में हेल्प करेगा. आपको एक क्लियर प्रोनाउंसिएशन या एक क्लियर एक्सेंट सिखाया जाएगा जो आपको एक सही इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगा. ठीक है, of course we are going to learn different accents as well, different sounds and phonics as well, which will help you to get that native like fluency. लेकिन आपका focus होगा to get your accent right. Then we will be working on the public speaking, presentations and reviews. ये 3 वो मॉड्यूल्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं. मेंटोर आपको सिर्फ एक टॉपिक प्रोवाइड करते हैं. सो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर आपको गिवन टॉपिक के ऊपर अपने तमाम फेलोज़ के सामने बात करना होती है, कुछ मटेरियल शेयर करना होता है जूम क्लास में और उन्हें पढ़ाना होता है. ठीक है, सो पब्लिक स्पीकिंग में आप लोग डिबेट्स करते हैं. आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसमें एक टीम बनाई जाती है जो फेवर में बात करती है, एक टीम बनाई जाती है जो अगेंस्ट बात करती है. इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि सबसे पहले तो हमारी हेजिटेशन ख़त्म हो जाती है, एंड सेकेंडली आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग हम सीखते हैं. एंड व्हेन यू नो हाउ टू बिल्ड एन आर्ग्यूमेंट यू कैन स्पीक लाइक अ फ्लुएंट पर्सन एनीवेयर एनी टाइम. देन आप इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ हम कंडक्ट कराते हैं उसमें आपको पढ़ाना सिखाया जाता है. ठीक है, बिकॉज वी सी कि हमारी मार्केट में जॉब्स जो हैं वो टीचिंग से रेलिवेंट भी हैं. सो यू विल बी टॉट हाउ टू टीच ऑल्सो ऑनलाइन स्पेसिफिकली. देयरफॉर आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताई जाएंगी कि ऑनलाइन लेसन्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे टीच किया जाता है क्लासेस में, एक्टिविटीज़ या इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ कहाँ से शेयर करनी है, कौन कौन सी वेबसाइट्स और रिसोर्सेज हैं, किस तरह से आप बच्चों को इफेक्टिवली 40 मिनट के सेशन में चीज़ें समझा सकते हैं. इन तमाम स्किल्स को भी सिखाने के बाद आपकी प्रेजेंटेशंस ली जाती हैं जिसमें आप बच्चों को
टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। अब वो टॉपिक डिफरेंट होते हैं, आप सबसे पोल्स क्रिएट करके पूछा जाता है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं, हिस्ट्री पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं, ग्रामर पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं, या कोई और टॉपिक है, साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक है, AI से रिलेटेड कोई टॉपिक है जो आप पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं। सो आप अपना इंटरेस्ट बताते हैं और उससे रेलिवेंट मटीरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप अपना लेक्चर प्रिपेयर करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रैटेजीज जो मेंटोर ने एक दिन पहले बताई हैं, और उसके बाद आपकी क्लासेस कंडक्ट होती हैं वेयर यू टीच अदर पीपल। एक और फ़ायदा इस क्लास का ये होता है कि आपके डेमो लेसन्स प्रिपेयर हो जाते हैं। वो क्लाइंट्स जो आपको हायर करना चाहते हैं टू टीच देयर किड्स और मे बी टू टीच देम, वो आपके डेमो लेसन्स को देखकर समझ जाते हैं कि आपकी स्किल्स कैसी हैं टीचिंग की। सो दिस हेल्प्स देयर एज वेल। हम कहते हैं कि यहाँ पे आपकी पोर्टफोलियो बिल्डिंग भी हो रही है। The last topic which we have in our course outline is ebook reviews and summaries. Here you guys are taught how to give reviews of the given material. तो कुछ बुक्स हैं जो आपको पढ़ाई जाएंगी पहले या आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो आपको थोड़ी सी पढ़ाई जाएंगी, बाकी आपको घर में पढ़नी होंगी, आपको गाइड किया जाएगा। ऑडियो बुक्स भी हैं, PDFs भी हैं, आपने उनको पढ़ना है एंड बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपने उन बुक्स को अपने लफ्ज़ों में रिव्यू करना है, ठीक है। सो इंग्लिश की किताब जो आप पढ़ेंगे उसको आप इंग्लिश में ही रिव्यू करेंगे और उसकी समरी हमें प्रोवाइड करेंगे। इन दिस मैनर आप एक क्रिटिकल थिंकर के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ द इंटायर कोर्स आउटलाइन। एज यू कैन सी सिर्फ स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स हैं जिनको मैंने आपको पढ़ाना है, एंड द रेस्ट ऑफ द कोर्स आउटलाइन इज़ फॉर यू पीपल, फॉर योर प्रैक्टिस एंड फॉर योर पार्टिसिपेशंस. So I hope that this course outline is going to help you in all the possible ways to improve your spoken English. Moving on to the first lesson of the day. Today we are going to focus on 3 topics. Number 1, out of all the topics, the first one is how to introduce yourself in the formal scenario. So self-introduction. What is self-introduction? After this topic, I would be asking you all to introduce yourself also. ठीक है? आप सबने क्या करना है कि आपने खुद को introduce भी करना है after learning the all strategies, okay? चलें, that's great. इसी वजह से मैंने अभी तक किसी का नाम नहीं पूछा, where do you belong from, मैंने कुछ नहीं पूछा because I'm going to ask you all this later on. Okay, so in self-introduction, what do we do? Self-introduction is a technique. It's basically a practice which is used by the people to create their very first impression. Self-introduction में हम क्या करते हैं? हम खुद को introduce करते हैं और अपनी skills से relevant data लोगों को मीन्स बोल कर बताते हैं कि हम कौन हैं, ठीक है। एंड as you can see, you only get one chance to create a first and the best impression. So let's try to make the best impression of ourselves in this class also. There is a model here जो आप सब I hope देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद जूम इन कर देती हूँ। ओके, एज यू कैन सी वी हैव दिस इंटायर मॉडल। हम इस मॉडल को सामने रखते हुए अपना इंट्रोडक्शन बनाते हैं। अब मैं जब कह रही हूँ कि इंट्रोडक्शन बनाते हैं, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट देर आर सर्टन लाइन्स एंड थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट्स जो आप 1 by 1 अपने दिमाग में स्ट्रक्चर कर लेते हैं कि मैंने पहले ये बताना है, फिर मैंने ये बताना है, फिर मैंने ये बताना है, एंड इन दैट मैनर आपके लिए बोलना आसान होता है और सही तरीके से आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लियर एंड करेक्ट information can be given if you focus or if you follow some organized pattern, ठीक है। So this helps us to make our self introduction organized and clear. So let's understand the model. Firstly, we start off with our name, ठीक है। So हम इस मॉडल को पहले पढ़ लेते हैं। Hi, my name is Heather and I am 19 years old. I live in Karachi with my parents and brothers. I am a first-year computer science student. I am pursuing a certificate course in communicative and functional English after my college hours to improve my language skills. I like programming and mathematics. During weekends, I take dancing classes, swimming, and Veena. I like puppies. My favorite color is pink. My favorite food is masala dosa. I want to learn how to play volleyball better. Thank you. Now, as you can see, कि हर जो structure है, like every line in the self-introduction is telling us something about the person. It all starts with the greeting. तो सबसे पहली जो चीज़ आपके self-introduction में आती है, that is greeting, ठीक है। So आप greet करते हैं the person who's standing
in front of you. The person who's standing in front of you. Okay. We start with the greeting. It can be hi, hello, good morning or good evening. And then we mention our name. In the second line हम क्या करते हैं? हम अपने name को mention करते हैं, ठीक है? Then we tell about our age, यानी हमारी जो personal information है, हम उसे share करते हैं. I am 19 years old and I live in Karachi with my parents and brothers. Greeting, name, age, where do you live, something about your family, your siblings, and then I am a first year computer science student. आप देख सकते हैं कि ये सेल्फ इंट्रोडक्शन एजुकेशनल एटमॉस्फेयर के लिए है. इट मीन्स कि हम जो भी बात यहाँ करेंगे वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा. सो आफ्टर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन you jump onto the main topic, the main context. So I'm a first year computer science student and I'm pursuing a certificate course in communicative and functional English. So after that आप क्या mention करते हैं? What do you study? What are you studying? Why are you here? Okay? क्या कर रहे हैं आप? कहाँ से कर रहे हैं? ठीक है? And what are your hobbies? Education wise. I like programming and mathematics. उसके बाद what are your hobbies? The personal ones. During weekends I do swimming, dancing, writing, etc. After that you mention your hobbies. Like your preferences, कि आपकी जो preferences हैं वो क्या क्या हैं. Like you like animals, the color and the food. And then, why are you here? I am here because I want to learn how to play volleyball better. Or I'm here because I want to learn programming. Or I'm here because I want to learn English. I want to learn how to communicate properly. And then you say, thank you. Okay? So, let's study the model one more time. We are going to start with the greetings. Then we are going to mention our age, greeting, name, then age, then something about our family, then what are we studying, the class and discipline, ठीक है? So नाम, greeting, नाम, age, कहाँ रहते हैं, क्लास के बारे में बताएंगे, जो सब्जेक्ट्स आपको पसंद हैं, जो वीकेंड्स पे आप लोग लाइक आपकी हॉबीज़ हैं, कुछ और प्रेफरेंसेस कि आपको एनिमल्स क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है, कलर्स कौन सा फेवरेट है, लास्टली व्हाई आर यू हियर, एंड देन द क्लोजिंग लाइन. That's the very basic and very easy way to introduce yourself, especially in the educational atmosphere. All right, so now we are going to practice the self introduction. सबसे पहले आपने greetings mention करनी है, then you have to mention your name and your age, then आप कहाँ रहते हैं, like your personal information, where you live and about your family, class के बारे में mention करना है, your subjects, your hobbies and preferences, other preferences like the animal you like, the food you prefer to eat, the color you like, and lastly आप यहाँ क्यों हैं. कुछ लाइनों में ज़रूर बताइए कि आप very good. And where have you joined me also, let me know. Try to focus on this model please. इस model को focus करते हुए अगर आप एक paragraph लिखेंगे, 2 to 3 lines लिखेंगे, that would be great. Well done. Last 30 seconds are left. 14 years old. Very good. Welcome to the class. Okay, last 1 minute left. Jaldi se. Want to learn English. Very good. Thank you and welcome to the class. I hope that this course will help you out and it will help you to improve your spoken English. It will help you to increase your confidence and it helps you to communicate better English. Communicate in better English. Okay, let's get started with our second topic of the day. Today we are going to learn about cleft sentences. जैसा मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में हमें कुछ स्ट्रेटजीज़ को समझना पड़ता है. उन स्ट्रेटजीज़ को समझकर हम इस्तेमाल जब करते हैं तो वी साउंड बेटर देन द एवरेज इंग्लिश स्पीकर. सो बहुत सारे लोग होते हैं रूम में जो बात कर रहे होते हैं बट वी ओनली पे हीड
on the people, we listen to them clearly, or we listen to them because whatever they are speaking, they speak it with some emphasis, they speak it with some charm. So there's always a charm in like in the spoken of the people, जो कि कम्युनिकेशन, जिनको कम्युनिकेशन करना आता है, जो कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी से वाकिफ होते हैं. सो वहीं से एक स्ट्रैटेजी आज हमने पिक की है क्लेफ्ट सेंटेंसेस की. वी यूज क्लेफ्ट सेंटेंसेस and we teach cleft sentences to our communication student because it helps them to sound better and it helps them to speak with emphasis. तो आप जब भी बोलेंगे, जो कुछ भी बोलेंगे, आप एक स्ट्रेस के साथ बोलेंगे, एम्फेसिस के साथ बोलेंगे, एंड पीपल विल लिसन टू यू. चलें तो स्टार्ट करते हैं वार्म अप एक्टिविटी के साथ. सबसे पहले, व्हाट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग यू हैव डन दिस ईयर? इस साल आपने सबसे एक्साइटिंग काम क्या किया है? टेल मी अबाउट इट. द चैट बॉक्स इज ओपन. टेल मी, हरी अप. Thank you, Hira Altaf, for joining us. I welcome you to the class. Okay, you have given the donation, start a business, start a job, build a company in Lahore. Very good. Went to a trip, completed education, started earning, home academy, did internship, went to Dubai, visited Naran, started a job. Very good. So this is the thing that you have done. Started teaching, started Amazon. Very good. So this is the most exciting thing you have done this year. Now there is another way to say this or to reply or to respond to this question. Let's understand it. हम अब यूज़ करेंगे क्लेफ्ट सेंटेंसेस इस तरह के सवालों को आंसर करने के लिए. सबसे पहले रूल समझ लेते हैं. क्लेफ्ट सेंटेंस क्या है? क्लेफ्ट सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है या सेंटेंस को बोलने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम सेंटेंस को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. एक वो हिस्सा होता है जिसमें हम अपनी बात, जो इम्पोर्टेंट बात हमने करनी होती है, ठीक है, और एक वो हिस्सा होता है जिसमें हम उसके साथ कुछ ना कुछ अटैच कर देते हैं ताकि हमारी इम्पोर्टेंट बात को हर कोई सुने. ठीक है. सो हाउ डू वी स्ट्रक्चर इट? लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहले हम अपने सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं विद इट इज़ या इट वॉज. ठीक है. अगर तो प्रेजेंट में काम बात कर रहे हैं तो हम इट इज़ यूज़ करेंगे, अगर पास्ट में बात कर रहे हैं तो हम इट वॉज यूज़ करेंगे. सो इट इज़ स्टार्टिंग Amazon, विच इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग आई हैव डन दिस ईयर. एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. ठीक है. सो सबसे पहले आपने सेंटेंस स्टार्ट करना है विद इट इज़. उसके बाद जो चीज़ आप सबको सुनाना चाहते हैं या जो चीज़ आपके सेंटेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप उसको मेंशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ टीचिंग, विच, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो इट इज़ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसको अटैच कर देंगे आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात के साथ. उसके साथ आप हु, दैट या विच का इजाफा करेंगे. अगर तो आपकी इम्पॉर्टेंट बात किसी पर्सन से रिलेटेड है तो आप हु लगाएंगे, और वो अगर वो पर्सन इंसान है तो आप हु लगाएंगे. ठीक है. अगर आप किसी एनिमल के साथ से रिलेटेड बात करें तो आप विच लगाएंगे. ठीक है. और अगर आप किसी दूर की चीज़ के लिए या किसी नॉन लिविंग चीज़ के लिए आप बात करें तो आप दैट लगाएंगे. ठीक है. एंड देन योर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल कम. सो इट इज़ मिस मायरा हु टीचर्स, क्योंकि मैं इंसान हूँ, so that's why हमने who ऐड किया यहाँ पे. So it is Miss Myra who teaches spoken English on the platform of LWE. हमारा पहला सेंटेंस है Miss Myra teaches English spoken on the platform of LWE. लेकिन इसी बात को कहने का दूसरा अंदाज क्या होगा? It is Miss Myra who teaches spoken English on the platform of LWE. हमने अपनी बात स्टार्ट की है it is के साथ. इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ. उसके बाद जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है मेरे सेंटेंस में, who teaches you spoken English on the platform of LWE? It is Miss Myra who teaches English on the platform of LWE. Miss Myra के साथ आपने who अटैच करना है क्योंकि हम एक लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं. अगर हम पेट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में बात करें तो विच लगाएंगे. ठीक है. सो हम यहाँ पे who ऐड करेंगे उसके बाद, and then rest part of your sentence, who teaches on the platform of LWE. Got it? So it is से शुरू करें, important चीज़, उसके साथ who, that या which ऐड करें, and then the rest of your sentence will come. अगर आपकी बात जो है वो past में है तो आप it was लगाएंगे. ठीक है. Okay, now everyone, what is the most exciting thing you have done this year? Answer this question to me by using cleft sentences.
कोशिश कीजिए इसे यूज करने की. We still have certain examples left. क्लेफ्ट सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं एम्फेसिस करने में. वेरी गुड मोहम्मद, वेल डन. इट इज़ डिजिटल मार्किंग that is the most exciting thing I have learned this year. Very good. It is Roman who I like to spend the most time with. Very good, very good. Brilliant. कुछ और एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंड करते हैं. जॉन ब्रोक द ग्लास. अब यहाँ पे क्योंकि सेकेंड फॉर्म यूज हुई हुई है तो हम क्या करेंगे, वॉज का इस्तेमाल करेंगे. इट वॉज जॉन हु ब्रोक द वॉल्स. ठीक है, अगर फर्स्ट फॉर्म आता है तो इज लगाते हैं, और सेकेंड फॉर्म आता है या पास्ट में बात करते हैं तो हम सेकेंड फॉर्म का या वॉज का इस्तेमाल करते हैं. शी बॉट द ड्रेस यस्टरडे. इट वॉज यस्टरडे दैट शी बॉट द ड्रेस. अब ड्रेस की नॉन लिविंग थिंग है, इट्स अ थिंग राइट, तो हमने दैट का इस्तेमाल करना है. और यहाँ पे बॉट आ रहा है तो हमने इट के साथ वॉज लगाना है. सो इट वॉज यस्टरडे दैट शी बोट द ड्रेस. मज़ीद एग्जाम्पल्स एक्सप्लोर करते हैं. आई लव दिस सॉन्ग. इट इज़ दिस सॉन्ग दैट आई लव. सम मोर क्लेफ्ट सेंटेंसेस. इट वॉज माई ब्रदर हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट. ठीक है, इट वॉज माई ब्रदर हु कॉल्ड यू last night. It is chocolate cake that she enjoys the most. It was during the holidays that we met. It is honesty that I value in the friendship. It was your advice that helped me decide. It is at the gym that he works every evening. It was not me who made the mistake. It was Sarah. Now let's practice it again. I passed the exam because of my best friend notes. It was my best friend's notes that helped me pass the exam. Now you tell me, what helped you to pass the exam? Start it with it was or it is, then the thing you are putting emphasis upon, and then add who, that or which, and then rest part of your sentence. Hurry up. Very good. Try to write down one or two sentences, please. Of course, I will repeat it for you. Don't worry. So, cleft sentence में हमने अपनी बात में emphasis create करना होता है. And for that reason, हम अपना sentence start करते हैं it is के साथ या it was के साथ. तो अगर आप present में बात कर रहे हैं तो आप it is use करेंगे, otherwise आप it was use करेंगे. अगर आप it is use कर रहे हैं तो आप first form of verb use करेंगे, it was use कर रहे हैं तो second form of verb use करेंगे. ठीक है? So, it is ma'am Myra who taught us grammar in LWE. ठीक है, अब सबसे पहले आपने सेंटेंस इट इज से शुरू करना है. उसके बाद जो आपका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेंटेंस का, जिस बात पे आपने एम्फेसिस लेकर आना है, जोर लेकर आना है, आपने उसको ऐड करना है. उससे रिलेटेड आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हु, दैट या विच, और फिर बाकी का सेंटेंस आप राइट डाउन करेंगे. नाउ ट्राई टू राइट डाउन इन द सेंटेंस प्लीज. Very good. Very nice. Very nice. Very good effort, everyone. Perfect. Good. So, इस तरह से हम cleft sentences को use करते हैं in order to sound more proper. ठीक है. Lastly, अब हमारा जो last topic है आज की क्लास का वो vocabulary से related है. हम कुछ vocabulary को learn करने वाले हैं. तो सबसे पहले we have this word called curriculum. Curriculum. What is curriculum? Curriculum means the syllabus. So school में जो आपको content पढ़ाया जाता है उसे curriculum कहते हैं. Assessment. Assessment. It is the method which helps us to evaluate. ये वो method होते हैं जो हमें check करने में help करता है कि आया student को knowledge है भी, understanding हुई भी है उसकी या नहीं हुई. So test वगैरह, exams वगैरह जो हम लेते हैं वो assessments होती हैं. देन वी हैव प्लेजरिज्म. प्लेजरिज्म का मतलब कि किसी भी इंसान का आप काम कॉपी कर लें लेकिन आप फिर उसको कोई क्रेडिट ना दें. ठीक है, जैसे मैंने किसी का आर्टिकल कॉपी किया लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैंने इसकी बुक से या इसके रिसोर्स से ये आर्टिकल पढ़ा था, तो दैट वुड बी कॉल्ड कंटेंट स्टीलिंग या प्लेजरिज्म. Then we have collaboration, working together to achieve something. Can you write something using collaboration? Can you use this word in your sentence, please? Then we have critical thinking. It means when you analyze something. Critically आप किसी चीज़ को देखते हैं, उसके positives और negatives को देखते हैं, and then आप अपनी judgment देते हैं. Then we have dissertation. It's a thesis, जो research work आप करते हैं by the end of your university year.
इंडिपेंडेंट लर्निंग, इट मीन्स व्हेन यू लर्न विदाउट एनीबडी, एनी टीचर, ठीक है, किसी सुपरविजन के बगैर, किसी गाइडेंस के बगैर अगर पढ़ाई करें तो उसे इंडिपेंडेंट लर्निंग कहा जाता है, जो कि यहाँ पर नहीं हो रही. I am here ना to supervise or guide you, so it is your dependent learning. Academic integrity, it means to do something honesty with honesty. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ऐसी लर्निंग जिसमें क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, इन्वेस्टिगेट किया जाता है. एंड लास्टली वी हैव पीयर रिव्यू. इसका मतलब होता है कि आप अपना काम उसी फील्ड के लोगों को दिखाते हैं ताकि वो आपको कुछ सजेस्ट कर सकें कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी इज रिलेटेड टू हैबिट्स, ओके, एंड रिलेटेड टू आवर एवरीडे यूज. फॉर एग्जाम्पल अकम्पलिशमेंट. अकम्पलिशमेंट का मतलब क्या होता है? समथिंग जो कि आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लें. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं, इसको आपको सर्टिफिकेशन मिलती है, तो ये आपकी एक अकम्पलिशमेंट है. अडैप्ट. अडैप्ट का मतलब होता है कि आप किसी नए इन्वायरमेंट में जाएं. जैसे आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आप उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं. दैट इज कॉल्ड अडैप्ट. टू चेंज योर बिहेवियर सो दैट यू कैन फिट इन टू द न्यू इन्वायरमेंट. देन वी हैव कोप. Cope means to deal with the difficult situations. Drain means when you get tired because you're dealing with a lot of things. Enthusiastic का मतलब किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट दिखाना, एक्साइटमेंट दिखाना. Fulfilling, कोई ऐसी चीज़ करना जो आपको हैप्पी फील कराए, सेटिस्फाइड फील कराए. फॉर एग्जाम्पल praying 5 times a day is fulfilling. Habitual, हैबिट को कहते हैं कोई चीज़ जो आप रोज़ करते हैं और रिपीटेडली करते हैं, आपकी हैबिट बन जाती है. You call it habitual. Isolate means खुद को अकेला कर देना. Mindful means consciously aware होना for something, and overwhelmed means to unable to manage everything at once. I am so overwhelmed because I'm managing a lot of things at once. Now this is the wrap, everyone. Let's move towards the assignment. In assignment number 1, you have to introduce yourself in a formal scenario using the shared theme. तो आप सब लोग रिटन एक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, नोटबुक ओपन करेंगे और उस पर आप खुद को इंट्रोड्यूस कराएंगे बाय यूजिंग दिस मॉडल. देन स्पीकिंग प्रैक्टिस में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इनको कॉपी पेस्ट करके आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ. जो आपको वोकैबुलरी वर्ड्स अभी सिखाए गए हैं, आप उनको यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, अपने आंसर्स को रिकॉर्ड करेंगे और आप इनको शेयर करेंगे ऑन द फेसबुक ग्रुप ऑफ LWE. लास्टली यू हैव टू डू दिस वर्कशीट. ये वर्कशीट आपको दी जा रही है जो कि क्लेफ्ट सेंटेंसेस से रिलेटेड है. आपने सेंटेंसेस को रीड करना है. जो सेंटेंसेस क्लेफ्ट सेंटेंसेस है उनके आगे C ऐड करना है. जो रेगुलर सेंटेंसेस है उनके आगे आपने R ऐड करना है. एंड दैट्स इट. दैट्स योर इंटायर assignment for class number 1. So it's a wrap from my side, everyone. If you have any questions or queries, you can let me know. Thank you everyone for joining me in today.